कंपटीशन ज्यादा नहीं है, कंपटीशन सिर्फ 50,000 लोगों में है, दो स्टूडेंट हु हैव द राइट गाइडेंस। बाकी के 4.5 लाख लोगों के पास गाइडेंस ही नहीं है, गाइडेंस ही नहीं। तो आई कंसीडर दिस एज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम इफ यू हैव द राइट डायरेक्शन, इफ यू स्टडी वेल, इफ यू स्टडी विद डेडिकेशन, पैशन। Hello friends, welcome to Target UPSC. As you know, UPSC is always famous for giving shocks, and I think so it is a shock in a positive way. I think so भगवान चाहता है कि इस साल 2020 would be the year of prelims, because पिछले एक साल से you guys have been preparing for prelims from January, some are preparing from September, October, and still you have to prepare for prelims till this October. So I think so this is the situation, and I see a silver lining in everything, and this is the best opportunity for every class of students, be it first attempt, be it second attempt, be it third or fourth attempt, or be it working professional also. So I think so ये सबसे best opportunity है सबके लिए to prepare for UPSC. To give you a reason, ऐसा situation कभी नहीं आया, and no one has got this opportunity of extra time for preparing for prelims and mains. Planning effectively is the most important thing, because इस 4 महीने में जो अच्छे से plan करेगा अपनी preparation, जो अच्छे से streamline करेगा preparation, अच्छे से micro notes बना के रखेगा for the next for the mains, that person would win. Basically, to start with this lecture, many students have asked about the strategy, and I thought whole night about it कि क्या strategy रहनी चाहिए, and I thought of dividing the strategy between those who have not been able to clear prelims or those who are giving their first attempt. उनमें उनके लिए एक अलग strategy रहेगी, और जो जिन्होंने पहले mains दिया, interview दिया है, those who are confident about prelims, उनके लिए एक अलग strategy रहेगी. So to start with, जिन्होंने अभी तक prelims पास नहीं किया है, second attempt है, first attempt है, third attempt है, और जो पास नहीं कर पाए, I think so for you prelims is the biggest hurdle, and आपको उस पर focus करना चाहिए. When in next 4 months आपको completely prelims give up नहीं करना चाहिए. तो so I have a suggestion for them. आपके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, you need to prepare at least 2 to 3 hours for prelims in June and July. तो आपका around 30 to 40% टाइम्स आपका prelims preparation में ही दीजिए, and rest 60 to 70% of your time should be for mains. And आपका जो सितंबर और अगस्त और सितंबर है, that has to be effectively only for prelims. अगर आप prelims ही पास नहीं करोगे तो मेंस कैसे लिख पाओगे, और prelims अगर पास करोगे तो नेक्स्ट जो जोश होता है उसमें नेक्स्ट 3.5 months में you would definitely clear mains. लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको कॉन्फिडेंस बने रहने के लिए prelims पास होना जरूरी है. तो I would suggest give 30 to 40% time from June and July for prelims, around 30%, and after in August and September give almost 100% of your time for prelims preparation. लेकिन जब भी आप prelims की preparation कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप मेंस का भी indirectly prepare कर रहे हो. As I said कि Indian history is part of mains, art and culture is part of mains, Indian geography is part of mains. अगर इतना भी आपने कर लिया during August and September, you are indirectly preparing for mains itself. तो आप ये मत सोचिए कि आप prelims पढ़ते पढ़ते आप मेंस का ये नहीं करिए. अगर आप जो भी schemes कर रहे हैं अभी, जितने भी schemes आ रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, that you can write in solutions. So आप prelims पढ़ते समय ये मत सोचिए कि सिर्फ आप you are preparing only for prelims, you are indirectly preparing for mains, but आपको वो mindset create करना है कि अभी मैं जो भी पढ़ रहा हूँ prelims perspective, उसको मैं मेंस में कहाँ यूज करूँ, अगर आपके माइंड में रहा हर बार कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ते समय, तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगा. अब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो प्रीलिम्स के लिए, लेकिन उसके आर्टिकल्स आपने याद कर लिए, तो आप आंसर राइटिंग के समय यू कैन डेफिनेटली यूज इट. जैसे इफ यू रीड लक्ष्मीकांत, उसमें दिया है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सेड कि कैग इज द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस of Indian democracy. So this statement can definitely be used in mains also. So your prelims and mains is not segregated. That's what I'm going to tell you. So first and second attempt वालों के लिए make sure आपका 30% of time is for prelims during this June and July, and rest of your time should be for your mains. Those who are preparing for those who have already cleared mains, उनके लिए अलग strategy है. I would suggest आप June and July you can exclusively focus on your mains preparation, and August and September is definitely prelims. August and September completely आपको prelims पर करना है. आपके लिए August and September क्यों prelims important है, क्योंकि competition बढ़ रहा है. First attempt, second attempt जो भी है उनको equal time मिला है, ज़्यादा time मिला है, तो आपको August and September do not get laid back और आप over confidence में मत जाइए. August and September prelims कीजिए, लेकिन June and July exclusively focus on mains preparation. और साइड बाय साइड ऐसे करते समय आप क्या कीजिए कि एक आधा आपने टेस्ट सीरीज दे दिया prelims का, वीक में एक आधा टेस्ट आपने लिख लिया, तो that would keep you in touch with the preparation of prelims. Secondly, कि कौन से सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए. एक इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, आई कुड नॉट गेट अ बेटर रैंक बिकॉज आई डिड नॉट स्कोर वेल इन एसे. तो आई वुड सजेस्ट वन ऑफ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर एसे इज टू राइट एसे एंड टू रीड एसेस. तो मैं आज से यही बोलूंगा कि मेक श्योर आप हर 2 दिन में एक टॉपर का एसे पढ़िए. यू मस्ट हैव नोइंग बहुत सारे टॉपर्स के एसे ऑनलाइन है, उनका एसे पढ़िए और वीक में एक एसे लिखिए. अगर आप इफ यू टेक फ्रॉम नाउ यू हैव 8 वीक्स, तो अगर आप 8 एसे लिखोगे और 16 अराउंड 16 to 20 एसेस पढ़ोगे, तो डेफिनेटली आपका एसे राइटिंग स्किल्स बढ़ेगा. यू नीड टू ऑब्जर्व कि वो क्या अच्छी चीज लिख रहे हैं. यू नीड टू रीड द गुड एसेस एंड साइमल्टेनियसली राइट द एसेस. तो मेक श्योर आप 5 to 8 एसेस के बीच में आप आपका प्रिपरेशन जून और जुलाई में लिखिए. सेकेंडली, ऑप्शनल की बात की जाए तो मेक श्योर कि ऐसे कुछ पार्ट है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको लग रहा है वीक है और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, तो उस एस्पेक्ट में आप अपने नोट्स बना के रखिए. तो ऑप्शन में सब कुछ नहीं पढ़ना है. इफ यू गो फ्रॉम फर्स्ट टू एंड आप पूरा नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेशन आएगा. सिलेक्ट द टॉपिक्स व्हिच यू आर इन वीक, जिसके आपके नोट्स नहीं बने हैं, माइक्रो नोट्स नहीं बने हैं, उन्हीं चीजों पर आप फोकस करना स्टार्ट कीजिए. तो यही बोलूंगा कि स्ट्रेटेजाइज कि हाँ ये पार्ट मेरा वीक है, मैं ये हर बार भूलता हूँ, तो यही पार्ट मैं अच्छे से प्रिपेयर करके रखता हूँ. विद रिस्पेक्ट टू जीएस मेंस, आई वुड सजेस्ट पेपर 4 इज अ कंपैरेटिवली स्टैटिक पार्ट जो आप अभी फुल फ्लेज्ड में कर सकते हो. और मेक श्योर आपके नोट्स रेडी है, हर एक चीज के माइक्रो नोट्स रेडी है. सिर्फ पढ़ना
इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास जब तक आपके कंसाइज नोट्स नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको मिलेगा कि इस तरीके से आपके नोट्स चाहिए, जैसे आई विल बी शेयरिंग द स्क्रीनशॉट्स। तो इस तरीके से कि आपके हर एक टॉपिक के स्क्रीनशॉट्स, हर एक टॉपिक के आपके पास नोट्स, माइक्रो नोट्स रेडी चाहिए, सो दैट आप जब 3.5 महीने तब आप नोट्स बनाते ना रहे, आपके पास सब कुछ रेडी है, जस्ट रिवाइजिंग थिंग्स एंड राइटिंग मोर आंसर राइटिंग। तो GS4 पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है। GS2-3 में आपको ऐसी चीजों पर फोकस करना है जो स्टैटिक पार्ट है, जैसे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी कंपैरेटिवली स्टैटिक है, RTI स्टैटिक है, सोशल ऑडिट स्टैटिक है, सिटीजन चार्टर स्टैटिक है। तो ऐसे कुछ टॉपिक जो पेपर 2, पेपर 3 में है उसको प्रिपेयर करके रखना है। जो डायनेमिक पार्ट है वो हम प्रीलिम्स के बाद करेंगे, लेकिन स्टैटिक पार्ट ऑफ पेपर 2, पेपर 3 एंड कंप्लीट GS4 शुड बी योर टारगेट ड्यूरिंग दिस 2 months। साइड बाय साइड में यही बोलता हूं कि सारे लोग बोल रहे हैं कि आंसर राइटिंग करो, आंसर राइटिंग करो। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट आंसर राइटिंग करो, बट फॉर आंसर राइटिंग यू शुड हैव गुड कंटेंट। कंटेंट ही नहीं है लोगों के पास डेटा नहीं है, डायग्राम्स नहीं है, पॉइंट्स रेडी नहीं है। आंसर राइटिंग कैसे करोगे? आंसर राइटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू देयर इज अ फिक्स स्ट्रक्चर, लेकिन उस स्ट्रक्चर में फिक्स होने के लिए कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स चाहिए, एंड वो पॉइंट्स कब आएंगे? जब यू स्टार्ट थिंकिंग मोर अबाउट देम। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग एक्सक्लूसिवली आंसर लिख रहे हैं, मतलब ये ट्रेंड है कि लोग वो टॉपिक पढ़ते हैं और फिर आंसर लिखते हैं। हिंदू में से एक टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद उसका आंसर लिखेंगे। दैट इज नॉट द राइट वे टू प्रिपेयर फॉर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग इज अ स्किल जिसमें आपको क्या है कि पॉइंट जनरेट करते आने चाहिए। जो भी आप इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो ड्यूरिंग रीडिंग ओनली आपको पता चाहिए कि मैं ये कौन से आंसर्स में कैसे लिखूंगा। तो बिफोर गोइंग डायरेक्टली ऑन आंसर राइटिंग, मेक श्योर यू हैव एडिक्वेट कंटेंट, एडिक्वेट डायग्राम्स, एडिक्वेट डेटा, आपके पास एग्जांपल्स रेडी है, तभी यू गो फॉर आंसर राइटिंग। मैं यही बोलूंगा कि मेक श्योर आप एटलीस्ट मतलब आंसर राइटिंग करो, लेकिन ऐसे नहीं कि सिंपली पूरा दिन आंसर राइटिंग कर रहे हो। 2 क्वेश्चन बिफोर I made a strategy कि 2 questions I would write before going to lunch and 2 questions before going to the dinner, and ये questions मतलब lunch में I would write GS answers and dinner के वक्त I would write optional के answers। तो दो answers भी लिखोगे तो more than enough। It's answer writing से आप you are training your brain to recollect things, to put things in a right format। तो आई वुड सजेस्ट आंसर राइटिंग फोकस करो, लेकिन ऐसे नहीं कि विदाउट कंटेंट सिर्फ लिखना है इसके लिखो। पहले यू नीड बिफोर आंसर राइटिंग यू नीड अ स्ट्रॉन्ग कंटेंट एंड देन ओनली यू शुड जंप टुवर्ड्स आंसर राइटिंग। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेक अ प्लान। एवरी वीक का, एवरी डे का प्लान चाहिए कि हाँ इस दिन ये पढ़ूंगा, इस दिन ये पढ़ूंगा, और जब तक वो प्लान कंप्लीट नहीं होता है डू नॉट स्लीप। मतलब इतना आप डेडिकेटेडली आप प्रिपेयर कीजिए। आई सजेस्ट कि ये सबसे बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपका जो भी वीक पॉइंट है आप कवर कर सकते हो। GS4 अच्छे से कर सकते हो, ऐसे अच्छे से कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई वांट टू सजेस्ट कि एंड टू गिव एन आइडिया कि आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, कैसे चीजें पढ़ने हैं। आई लिंक अ वीडियो अबाउट आवर आंसर राइटिंग कोर्स, एंड उस एक वीडियो से यू वुड गेट एन आइडिया कि किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेक श्योर जो भी आप चीज पढ़ रहे हो आपके माइक्रो नोट्स रेडी रहे। क्योंकि क्या है कि लास्ट मोमेंट पर आपको ये लगता है कि सर मेरे पास नोट्स नहीं है, मैं ये चीज भूल गया, मुझे ये चीज याद नहीं आ रही है। तो मेक श्योर आप whatever you read for mains you have notes for it, concise notes for it, so that would make your things easy. Many students have been asking sir world history पढ़ेगा। I would not suggest go for world history because world history के hardly एक क्वेश्चन आता है, post independence के भी एक क्वेश्चन आता है, and what you're doing is you're wasting lot of time। उसके लिए बहुत पढ़ना होता है, और पढ़ भी लोगे तो भी you are going to forget it। पढ़ भी लोगे तो you are going to forget it। so make sure आप उस चीज पर जाओ ही मत। आपको your focus should be towards मतलब ऐसे चीज जो बहुत मार्क्स फेच करती है, जैसे ऐसे मार्क्स है, इथिक्स है, आपके GS2 है, GS3 है, इन चीजों पर आपका फोकस चाहिए। और एक चीज आपके लिए बताना चाहता हूं कि 8 जून को समथिंग न्यू, समथिंग बिग इज कमिंग अप। तो प्लीज आप अब हमारे YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल पर बने रहिए, एंड दैट वुड मेक योर प्रिपरेशन वेरी। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर आपका इथिक्स का कोर्स स्टार्ट हो रहा है क्या, आंसर राइटिंग का कोर्स स्टार्ट हो रहा है क्या? डेफिनेटली वो स्टार्ट हो रहा है, एंड उस कोर्स में व्हाट वी आर डूइंग इट इज, जैसे मैंने बताया कि आंसर राइटिंग भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन कंटेंट बिल्डिंग पर ज्यादा फोकस करेंगे। कंटेंट बिल्डिंग प्लस आंसर राइटिंग का एक कोर्स है, इंटीग्रेटेड मेंस कोर्स है, और एक एथिक्स पर भी कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। बोथ दिस कोर्सेस वुड बी देयर। आपको उसकी लिंक तुरंत मतलब आपको उसकी लिंक YouTube आपको उसकी लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पर जल्दी ही मिल जाएगी। So that is what I would like to suggest. First is for freshers 2 to 3 hours compulsory, and August and September should be your prelims. For those who have already cleared mains, who have given interview, August and September should be your prelims, and June and July should be your preparation for mains. Mains में भी focus on GS4 essay part of जो भी आपको लग रहा है GS3 और GS2 का static part, and optional का जो भी weak part है वो, and make notes। सबसे important चीज है कि until you make notes कोई उपयोग नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो I would मतलब यही बोलूंगा, at the end I would just like to tell you कि take this as a great opportunity and do not panic। फोकस कोरोना बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, आप ज्यादा न्यूज पर ध्यान मत दीजिए, फोकस ऑन योर प्रिपरेशन। आई डोंट थिंक सो यूपीएससी इसके बाद डेट पोस्टपोन करेगा, तो अब उस पर सोचिए मत, ज्यादा इस चीज पर डिस्कस मत कीजिए कि क्या पढ़ने वाला है, तू क्या पढ़ने वाला है। जब मतलब नो वन इज गोइंग टू कम टू योर हेल्प, यू आर द वन हु इज गोइंग टू हेल्प योरसेल्फ। तो ये चीज याद करके ही पढ़ना है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको नोट्स, आपका कोई दोस्त आके नोट्स आपको देगा, तो जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और आप तो आपके पास कोई चांस ही नहीं है। अगर आपने अभी पढ़ाई नहीं की तो बाद में रिग्रेट होगा, सर तभी टाइम था, तब पढ़ लेना चाहिए था, तब ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया। फेलियर हैज नो एक्सक्यूज, सक्सेस के पास एक्सक्यूज होता है, लेकिन फेलियर के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। नो वन इज गोइंग टू लिसन टू यू। आपको खुद को पढ़ाई करना है। मेक श्योर यू स्टडी फॉर 12 आवर्स, एटलीस्ट 12 to 30 आवर्स डेली। आज से पढ़ना स्टार्ट करो तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू, कंपटीशन ज्यादा नहीं है। कंपटीशन सिर्फ 50,000 लोगों में है, 2 स्टूडेंट हु हैव द राइट गाइडेंस। बाकी के 4.5 लाख लोगों के पास गाइडेंस ही नहीं है।
गाइडेंस नहीं है। तो आई कंसिडर दिस एज वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम इफ यू हैव द राइट डायरेक्शन, इफ यू स्टडी वेल, इफ यू स्टडी विद डेडिकेशन, पैशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट द टफेस्ट एग्जाम, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट एग्जाम इफ यू हैव द राइट कंटेंट, राइट डायरेक्शन एंड राइट हार्ड वर्क। तो मेक श्योर अगर ये 3 चीजों पर फोकस करोगे, आई वुड डेफिनेटली गारंटी यू कि आपका सिलेक्शन होगा। चलेगा। विद दिस इफ यू हैव एनी डाउट पिन मी ऑन, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना आपके और क्या डाउट्स है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर यू कैन ऑल्सो मैसेज कि आपके पर्सनल डाउट्स है, तो आई कैन हैंडल दोस क्वेश्चन। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज ट्यून इन फॉर 8th of June. We are launching something big. I'll not announce now, but stay tuned. Thank you.